हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मिनी मेहता एंड आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि उक्त रक्तचाप। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर से आपका हार्ट ब्लड पंप करता है आपकी आर्टरीज के अगेंस्ट। तो इसको हम नापते हैं कि दो टाइप से नापते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब आपका डायलेट करता है हार्ट, उसका दोनों का प्रेशर मेजर किया जाता है। तो कभी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई प्रेशर होता है, कोई स्ट्रेस होता है, तो उससे आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यूजुअली राइज करता है। लेकिन अगर आपको कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हार्ट के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई पाया जाता है। ब्लड प्रेशर यूजुअली ओल्ड एज में, व्हेन वी आर एजिंग, तभी कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स की वजह से पाया जाता है। लेकिन अगर इसको छोटे बच्चों में किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो डेफिनेटली दैट चाइल्ड नीड्स अ थॉरो चेकअप। देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद द हार्ट, or there must be some problem with the kidney. Why the pressure is rising? There should be some tumor. So this child needs the entire investigation. तो बच्चों में वैसे बहुत कम ही पाया जाता है। लेकिन हाँ, आजकल देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से टीन एजर्स में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत बार देखी गई है कि बहुत ज़्यादा वो माइग्रेन से सफ़र करते हैं, बेसिकली गर्ल्स, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज एंड स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, and boys also, because they are very competitive and they are, stressed about their exams, their career, so they are not living a right kind of lifestyle and they are having a lot of metabolic disorders. So blood pressure could be secondary presentation to some primary disease, like somebody is having a tumor, somebody is diabetic since he or she was a child, or there should be, some obstruction in some organ which is creating this pressure. So if you find, raised blood pressure in a young person, that person needs the entire checkup. If there is some problem is detected, some structural change is detected, it has to be attended thoroughly. Or if the weight, it is due to weight gain, then that person has to follow right lifestyle, so that then the blood pressure will be controlled. And in women, we have seen that in the menstruating women, they suffer a lot of disease like PCOD, a lot of different kind of tumors in the abdomen, like endometriosis is a problem, hormonal condition, or they're taking birth controlling pills. Sometimes these create a kind of stress on the body, and they started having high blood pressure, generally systolic. So and in the old age, when there is, when the person is aging, then they have the flexibility of the arteries, that change, they become more rigid, so they have, essential hypertension. That is not very dangerous, but just we have to follow a good lifestyle and take care and should not exert. The person can live very well. And what we do is, we divide, or we separate three stages of blood pressure. First, the initial stage, like, what is the normal blood pressure? 110 by 80 or 120 by 80. But if it starts to rise, like, 130 by 90, we call it first stage hypertension. 130 by 90 or 140 by 90, this person needs to check what is exceeding in the life: stress, food, no exercise. So with the lifestyle management and very light homeopathic medicines, this person can reverse this problem. And the second is 140 by 90 to 150, 160, sometimes fluctuation in the blood pressure. That means there is some problem has established in the body, and you need a right kind of treatment, diagnosis, and proper execution to reverse this condition. And if it is more than 160 without medicine, then you need to take medicines, for a longer time, and you should not ever discontinue. And there must be some problem in your with your heart or kidney, so you need a thorough checkup from your डॉक्टर। यूजुअली देखा गया है कुछ लोगों का सडनली, ऑल ऑफ ए सडन, इतना हाई बीपी डायग्नोज हो जाता है, जैसे 160 बाय 100 और जैसे 180 90, और वो आपको बोलेंगे कि हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं है, हमें तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ये नहीं हो सकता। और एसिम्टोमेटिक हाई ब्लड प्रेशर कुड बी ड्यू टू सम ट्यूमर इन द बॉडी। और अगर ये ऐसे ही बढ़ा रहा है, ये ट्यूमर भी नहीं है, अगर ये ऐसे ही बढ़ा रहा और किसी ने बॉदर नहीं किया, तो हो सकता है किसी दिन स्ट्रोक हो जाए।
क्लॉट्स बन सकते हैं बॉडी में, आपको किडनी को डैमेज हो सकता है, और क्या कहते हैं, चक्कर आ सकते हैं, और स्वेलिंग हो सकती है पूरी बॉडी के अंदर, और काफ़ी डैमेज हो सकता है विच नीड्स टू बी कंट्रोल। तो उसके लिए हम चेकअप कराते हैं, हम देखते हैं कि सीआरपी लेवल्स चेक कराते हैं कि कितनी इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर। हम लोग चेक कराते हैं यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन। अगर यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा आता है, इसका मतलब कि किडनी डैमेज हो रही है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो ये अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, यू नीड टू इमीडिएटली चेक ऑन इट। एंड वो जो लोग एल्कोहलिक हैं और जो लोग स्मोक करते हैं, उनको तो वैसे ही स्मोकर्स लंग हो जाता है। कई बार लंग डिजीज की वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, और हार्ट डिजीज की वजह से लंग की प्रॉब्लम हो जाती है, सीओपीडी कहते हैं जिसको। तो उसमें भी लोगों के ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहते हैं। कई लोग ध्यान नहीं देते, वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मदर टिंचर्स दे स्टार्ट टेकिंग, व्हिच आर वेरी फिजियोलॉजिकल डोजेस, which if you'll keep on continuing, they will initially start producing swelling in your legs and arms, and you will never know that your BP is rising and can damage your major organs later on. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं हार्ट डिजीज से, हाई ब्लड प्रेशर से, तो देन यू हैव टू कट डाउन ऑन योर स्ट्रेस लेवल्स ऑन द मेंटल प्लेन, स्ट्रेस लेवल्स ऑन द फिजिकल प्लेन। ना दिमागी तौर पे स्ट्रेस होना चाहिए, ना शारीरिक तौर पे स्ट्रेस होना चाहिए। तो अगर आप काम करते हो, बहुत जम के काम करते हो, देन यू शुड फाइंड, आपको दिन में 2 घंटे, हफ्ते में 4 घंटे निकालने चाहिए कोई खेल खेलने के लिए। क्योंकि जब हम खेल खेलते हैं या कुछ एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं, और हमारी सर्कुलेशन को अच्छा बनाते हैं, और हमारे को फैट गेन नहीं होता। ऑयली फैटी डाइट डेली थ्राइस अ डे मत लो। स्मोकिंग मत करो, मत लो अल्कोहल बहुत ज्यादा है। डेली 30 ml इज नॉट गुड, it's not good for your heart. If you are going to take it gradually, you are going to develop some BP issues, because BP will come if your body will start aging. और aging कैसे होगी? जब आप good lifestyle नहीं लोगे। तो उससे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा heavy खाना नहीं खाना, limited खाना खाना है, रफेज रखनी है। कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाती है, उससे भी ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है और हेडेक हो जाती है। तो राइट ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज कैन प्रिवेंट योर हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका बीपी हाई है, कभी 130/90 आता है, तो कभी 160/100 भी आ जाता है, और कभी नॉर्मल होता है। फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है थोड़ा सा चलने में भी, या आपके शाम को पैर सूजे हुए मिलते हैं, आपको सुबह उठते हो तो आपका फेस सूजा हुआ मिलता है, आपको कभी कभी लगता है कि आपको यूरिन नहीं खुल के आ रहा, बॉडी में स्वेलिंग दिखती है, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। और आपको ये भी सबसे बड़ा साइन है कि थोड़ा सा चलने में चेस्ट पे टाइटनेस लगती है, कि अगर इफ यू आर वॉकिंग नॉर्मली आल्सो यू फील टाइटनेस इन योर चेस्ट। एंड स्पेशली इन मिडल एज मैन, if you are having light BP complaints and you are unable to make your sexual relations in bed, you get severe dyspnea and sweating. This means your heart needs immediate essential care, and you need to go for the proper checkup and immediate treatment, because there is some problem. When you are unable to walk fast, unable to do any strenuous exercise, unable to walk continuously, there is a 6-minute walk test. अगर आप 6 मिनट चल रहे हो और आपकी छाती टाइट तारे होने लग गई हैं, ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइट हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, then this is angina, and this keeps on happening, coming and going. Men generally get to know and they report to the doctor, but females think that it is gastric problem. Ladies को लगता है कि छाती टाइट हो रही है, थोड़ी देर झुकती हैं, वो कुछ नमक को चाट लेती हैं, बट एंजाइना 10-10 सेकंड से लेके 10-10 मिनट तक होता है और अपने आप ओवर हो जाता है, मेजर हार्ट अटैक आने से पहले, जब हमारी आर्टरीज कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉक होने लगती हैं। ठीक है, तो आपको ये अलर्ट होना है कि मेरी छाती में टाइटनेस फील हो रही है चलने में, तो आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा, लिवर फैटी तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है आर्टरीज में और कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। एनीमिया भी एक कॉज है, कि अगर आपको एनीमिया है, लेडीज को हो जाता है, उससे भी स्वेलिंग हो जाती है और ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं, हार्ट मसल को नहीं मिलती ब्लड सप्लाई, और एंजाइना पेन होने लगता है, और बीपी भी हाई होता है। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा हमेशा कि अगर आपको अभी कोई भी डिस्कम्फर्ट है, पैल्पिटेशन होती है चलने में, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, इको कराना पड़ेगा, स्ट्रेस इको कराना पड़ेगा, ताकि आप सही दवाई ले सको। और अगर आपको ब्लॉकेज है आर्टरीज में, तो आप स्टंटिंग राइट टाइम पे करा सको बिफोर हार्ट अटैक अराइजेस।